Let's start our presentation. First of all, we are going to discuss about the case study and its type, case study limitation, और इसके साथ हम case study research की benefits को भी discuss कर लेंगे. After all of this, we will be able to know the case study very deeply and all of their contents, and then we will take hypothetical case and we will be apply all the steps of the case study research. To understand the case study very deeply and comprehensively, यानी कि केस स्टडी डिफिनीशन और इसके टाइप्स और इसके साथ साथ बेनिफिट्स और लिमिटेशन के बाद हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी लेके जाएंगे और इस पे सारी अप्रोचेस जितनी भी हैं केस स्टडीज़ के केस स्टडी रिसर्च की जितने भी स्टेप है उसको अप्लाई कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. A case study is a research approach that is used to generate an in-depth, multi-faceted understanding of a complex issue in its real-life context. It is established research design that is used extensively in a wide variety of discipline, particularly in the social science. यानी कि आजकल ये बहुत ज़्यादा सोशल साइंसेज में इस्तेमाल होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि a qualitative approach in which the investigator explore a real life contemporary bonded system, a case or multiple bonded system, a case over a time through detailed in-depth data collection involving multiple sources of information like observation, interviews, audiovisual material and documents, and as well as reports, and report a case description in case them. यानी कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, ऑडियोविजुअल मटेरियल और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट से भी इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. केस स्टडी रिसर्च टाइप. अब हम केस स्टडी रिसर्च टाइप को डिस्कस कर लेंगे कि केस स्टडी रिसर्च टाइप क्या है. तो केस स्टडी रिसर्च टाइप में कलेक्टिव केस स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज़ है, एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ है और इसके साथ एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ है, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज़ है, इंट्रांसिक केस स्टडीज़ है. Collective case studies, these involve studying a group of individual researcher might study a group of people in a certain setting up or look at entire community of people. Descriptive case studies, these involve starting with a descriptive theory. The subject are then observed and the information gathered is compared to the pre-existing theory. And within explanatory case studies, these are often used to do causal investigation. In other words, researchers are interested in looking at factors that may have actually caused certain things to occur. Exploratory case studies, these are sometimes used freeloaded out furthermore in-depth research. This allows researchers to gather more information before developing their research question and hypothesis. Instrumental case studies, these occur when the individual or group allow researchers to understand more than what is initially obvious to observer. और इसके साथ इंट्रांसिक केस स्टडीज, दिस टाइप केस स्टडी इज व्हेन द रिसर्चर हैज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस. तो ये थे केस स्टडी की टाइप्स. और अब हम केस स्टडीज़ की बेनिफिट्स को पढ़ लेंगे. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अ केस स्टडी इज दैट इट अलाउ रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट थिंग्स दैट आर often difficult to impossible to replicate in a lab. यानी कि लैब में कोई भी काम न होने से, यानी कि वहाँ पे मुश्किल वो काम जो वहाँ पे मतलब उसकी जगह न हो, यानी कि वहाँ पे इस किस्म की रिसर्च नहीं हो सकती, वही काम वही प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. अलाउ रिसर्चर टू कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, give researcher the chance to collect information on usual cases, allow researchers to develop hypotheses that can be explored in experimental research. ठीक है. अब लिमिटेशन ये है, कैन नॉट बी
cannot necessarily be generalized to the larger population. इसके साथ cannot demonstrate cause and effect, cannot be significantly regress and can lead to biases. तो ये थे कुछ limitation, benefits और case study research के types. अब हम इसके साथ इस पे एक hypothetical केस लेंगे और ये सारे जितने भी अप्रोचेस है, जितने भी स्टेप है केस स्टडी रिसर्च के, इसको इस पर अप्लाई कर लेंगे. मैं जल्दी पढ़ लूँगा. केस स्टडीज़ में जब आप कोई भी मतलब किसी केस पे काम करते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें इंट्रोडक्शन की स्टेज पे उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस केस के सारे मतलब वाइडली उसके उसको इंट्रोड्यूस करें. और मैंने तो यहाँ पे बहुत मतलब शॉर्टली इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टोरी कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है एट दी रपर एस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब. इसका काम क्या है, इसका प्रोडक्शन ये है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है दी रपर में. ये इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स को इसकी प्रोडक्शन करते हैं. Recently recommended a new line of production at Sheringal electric motors both for domestic and agriculture purpose. कंपनी ने अभी मतलब एक न्यू लाइन प्रोडक्शन शेरिंगल में मतलब ओपन किया हुआ है और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है डोमेस्टिकली एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है उसकी प्रोडक्शन करते हैं. इट नीड वन इलेक्ट्रिक इंजीनियर विद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन टू लुक आफ्टर द न्यू प्लांट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स. और इसी न्यू प्लांट को चलाने के लिए कंपनी को ज़रूरत है एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर की. प्रेजेंटली 4 इलेक्ट्रिक इंजीनियर आर वर्किंग इन द एग्जिस्टिंग प्लांट. अभी ये जो मेन ऑफिस है, मेन प्लांट है कंपनी के, इसमें प्रेजेंटली 4 इंजीनियर जो है ये काम कर रहे हैं. द कंपनी एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर फॉर इट्स न्यू प्लांट. अब तो ज़रूरी ये है कि न्यू इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की पोस्ट के लिए कंपनी एडवर्टाइज करें. इट रिसीव 12 एप्लीकेशन आउट ऑफ विच. और इसी तरह कंपनी ने एडवर्टाइज किया और कंपनी ने तकरीबन 12 एप्लीकेशन को रिसीव किया. और इस 12 एप्लीकेशन में से 4 इंजीनियर वही थे जो इसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. The company used their selection technique, basic interview, test, medical examination, and final interview. And finally, the company select Mr. Sajjar from the existing plant of the company. कंपनी ने अपनी बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसके मतलब बेसिक इंटरव्यू, जितने भी टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, फाइनल इंटरव्यू है, और इसके बाद कंपनी ने मिस्टर सजाद को सेलेक्ट किया फॉर द न्यू प्लांट ऑफ द कंपनी एज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. मिस्टर सजाद जो है ये इन द कंपनी सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर एंड द प्रेजेंट प्लांट. मिस्टर सजाद जो है ये चौथे नंबर पर है प्रेजेंट कंपनी में, यानी कि मेन आपस में ये चौथे नंबर पर है सीनियरिटी लिस्ट के. सीनियरिटी लिस्ट में ये चौथे नंबर पर है. The company gave the appointment order to Mr. Sajjad that he join as a chief engineer in the new plant. कंपनी ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया मिस्टर सजाद को और इसने एज अ चीफ इंजीनियर न्यू प्लांट में काम शुरू किया. But the 3 assistant engineer and the existing plan of the company motor issue the court of law contesting that the selection of Mr. Sajjad is not valid as he does not have seniority among the assistant engineer and the existing plan. अब मसला ये है कि कंपनी में जो बाकी मिस्टर सजाद के साथ जो 4 बंदे थे, अब मिस्टर सजाद को मतलब कंपनी ने चीफ इंजीनियर सेलेक्ट किया और बाकी जो 3 रह गई उन्हों को ये मसला मतलब अनवैलिड लग रहा है और उसने कोर्ट जाने का फैसला किया कि मिस्टर सजाद का जो सिलेक्शन है ये गलत है. अब हम इस सारी ये तो स्टडी केस की कंटेंट्स थे, मतलब मैंने जितने भी थे वो लिख के है. अब हम इससे एब्स्ट्रैक्ट, अब असल जितनी भी स्टेप है कि स्टडी रिसर्च में अब वो शुरू करने जा रहे हैं हम.
कि किस तरह हम इससे एक एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और इसके साथ फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं, ये सारे हम जान लेंगे। पहले एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चाहते हैं, तो मैंने तो कंटेंट्स ऑफ द स्टडी में इस सारे किसी को मतलब आप लोगों के सामने रखकर तफसीलन बताया। अब एब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो जो ख़ास पॉइंट्स होते हैं उसी की हम लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, needed one electrical engineer with BTech qualification to look after the new plant producing electronic motors. The company has made the advertisement for the post of chief engineer electrical part 8. The company received 12 application for application or assistant engineer working in the existing plant. यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसको मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो बीटेक क्वालिफिकेशन के हम, और ताकि ये कंपनी की जो न्यू प्लांट है जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स को इसकी प्रोडक्शन करते हैं उसको हेड कर सके। तो कंपनी हैज़ मेड दैट, और कंपनी ने इस पोस्ट के लिए मतलब एडवर्टाइज किया हुआ है, और तकरीबन कंपनी ने 12 ऐसे एप्लीकेशन को इस पोस्ट के लिए रिसीव किया है, और इस 12 में से 4 ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर है जो प्रेजेंटली वर्क करते हैं इन द ओल्ड कंपनी। यानी कि इसके साथ द कंपनी हैज़ सेलेक्टेड मिस्टर सजाद फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर, और कंपनी ने सारे बेसिक जितने भी प्रोसीजर है कंपनी के, यानी कि इंटरव्यूज़ वगैरह, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू के बाद मिस्टर सज्जाद को एज अ चीफ इंजीनियर सेलेक्ट किया है। By not considering the claim of the other candidate who are senior to Mr. Sajjad, the other assistant engineer moved to the court because the company did not consider the seniority as the criteria for promotion. अब मसला यही है कि जो बाकी 3 बंदे हैं असिस्टेंट इंजीनियर हैं प्रेजेंटली जो वर्क कर रहे थे पुरानी कंपनी में यानी कि मेन ऑफिस में, उन्होंने इस मसले को कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, और इसका ख्याल है कि ये जो मिस्टर सज्जाद का सिलेक्शन हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है। तो अब हम इस सारे किसी से अपने लिए प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो इससे तो मालूम हुआ है हमें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो एक्चुअली प्रमोशन पॉलिसी है कि ये बंदे ये जो 3 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर है, इसके ख्याल में जो प्रमोशन पॉलिसी है ये गलत है। तो हियर द केस इज रिलेटेड विद प्रमोशन पॉलिसी, यानी ये केस जो है ये प्रमोशन पॉलिसी के साथ रिलेटेड है। वेयर प्रमोशन इज नॉट गिवन ऑन द बेस ऑफ सीनियरिटी, और इन लोगों के ख्याल है कि मतलब प्रमोशन है जो वो सीनियरिटी के बेस पे नहीं दिया गया है, और हमने इस मसले को अपने लिए मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल किया। आफ्टर other employee who are senior to Mr. Sajjad, they are not agree with decision, they think that is unfair, therefore it is necessary solve this problem. अब इस मसले को सॉल्व करने की ज़रूरत है, यानी कि मसला प्रमोशन पॉलिसी के रिलेटेड है, और प्रमोशन पॉलिसी जो है ये अभी सीनियरिटी बेस पे नहीं दिया गया है, और अदर जो एम्प्लॉइज़ हैं ये मिस्टर सज्जाद से जो सीनियर हैं और दे आर नॉट एग्रीड विद देयर डिसीजन, यानी कि जो मैनेजमेंट है इसने जो डिसीजन लिया हुआ है इसके साथ एग्री नहीं है। तो अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम एनालिसिस करेंगे और इसके लिए एजम्पशन लेंगे और इस सारी प्रोसीजर को हम अप्लाई कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की स्टडीज़ में ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से या मतलब किसी दूसरी की स्टडीज़ से उसके लिए एजम्पशन ले। तो मैंने जो एजम्पशन लिए हुए हर एक की स्टडीज़ के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एजम्पशन होते हैं। अब मेरे एजम्पशन ये है, हर किसी के अलग अलग होते हैं। रिलेशन ऑफ अदर मेंबर इज़ नॉट गुड विद मिस्टर सज्जाद, ये भी हो सकता है कि जो ताल्लुक़ है मिस्टर सज्जाद के साथ अदर एम्प्लॉइज़ की वो अच्छी नहीं है, और या ये भी हो सकते हैं कि मिस्टर सज्जाद जो है ये टू क्लोज विद द टॉप मैनेजमेंट सो ही इज़ रिकमेंडेड बाय देम इवन इफ हिज परफॉर्मेंस, यानी कि इसकी लो परफॉर्मेंस के बावजूद
उसकी ताल्लुकात हाई मैनेजमेंट के यानी टॉप मैनेजमेंट के साथ अच्छे हैं और इसकी लो परफॉर्मेंस के बावजूद उसको मतलब रिकमेंड किया हुआ है कि इस प्रमोशन के लिए। मिस्टर सजाद ये भी हो सकता है मिस्टर सजाद परफॉर्मेंस बेटर देन ऑल अदर एम्प्लॉई सिंस लास्ट 5 ईयर एंड इट इज़ अबाउट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। यानी कंपनी की जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है प्रमोशन की, लास्ट 5 ईयर्स में मिस्टर सजाद के परफॉर्मेंस जो है ये सबसे अच्छे है और कंपनी की जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है प्रमोशन के उससे मतलब अबव है। Mr. Sajjad is getting reward and recognition because of his best performance, but promotion is given only on the merit base, not seniority. Company does not have fair promotion policy. या ये भी हो सकता है कि प्रमोशन ओनली सिर्फ मेरिट बेस पे दिया गया हो और सीनियरिटी पे नहीं, या ये भी हो सकता है कि कंपनी में मतलब प्रमोशन पॉलिसी सही तरीके से नहीं है। अब ये सारी एजम्पशन को हम लेके आके जाएंगे और इस पे एनालिसिस करके हम एक बेस्ट सोल्यूशन को निकालेंगे। अब इस प्रॉब्लम की कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर हम मतलब इनमें से किसी भी चीज़ को अप्लाई करें, तो इससे मतलब क्या हो सकता है। अगर हम सीनियरिटी बेस पे अगर हम सीनियरिटी बेस प्रमोशन मतलब पे फैसला करते हैं, तो इससे मतलब डिमोटिवेशन एमंग यंग मोर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, जितने भी यंग एम्प्लॉइज हैं उस पे मतलब इसमें डिमोटिवेशन क्रिएट होगा and young and competent employee will dissatisfied with the working environment. It may lead to have greater turnover और इससे मतलब टर्नओवर बहुत मतलब इंक्रीज होगा टर्नओवर में। अगर हम merit based promotion will lead to have frustration among senior employee as they think promotion is influenced by personal relation biases and union pressure। अब अगर हम सीनियरिटी बेस पे फैसला करते हैं, इसकी सीनियरिटी बेस प्रमोशन पे मतलब वही पॉलिसी लेते हैं, तो ये तो जाहिर है कि जितने भी यंग एम्प्लॉइज हैं उसमें डिमोटिवेशन क्रिएट होगा और हो सकता है कि मतलब टर्नओवर में इंक्रीजमेंट आ जाए। तो ये तो कंपनी के लिए मतलब नुकसानदेह है। अगर हम इसके बरकस मेरिट बेस्ड प्रमोशन पॉलिसी को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे भी मतलब कंपनी को नुकसान ही होगा, क्योंकि ये सीनियर एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा और इसके साथ मतलब ये सोचेंगे वे कि ये सारे के सारे जितने भी मतलब ये प्रमोशन होते हैं ये रिलेशन वगैरह की बेस पे होते हैं और दे मे फील इनसिक्योर एंड मे इवन क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, और हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। तो अब मसला ये है कि हम कौन से वाले मतलब प्रमोशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो अब हम एनालिसिस करेंगे। बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो द प्रमोशन पॉलिसी। अब हम एनालिसिस में अपनी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए इसके साथ मतलब जितने भी थ्योरीज है उसको अपने सामने रखेंगे और इसी बेस पे हम मतलब फैसला कर लेंगे, उसी पे एनालिसिस कर लेंगे। तो पहले मतलब एनीथिंग टू डिसाइड, बट फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो द प्रमोशन पॉलिसीज as there are 3 type on the base of seniority and the base of merit, and ये भी हो सकता है कि on the base of both seniority and merit कि मतलब सिर्फ सीनियरिटी या मेरिट बेस पे या दोनों पे एक ही साथ मतलब पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ऐसी भी पॉलिसी है। ईच मेथड हैज़ इट्स ओन ईच मेथड्स हैज़ इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स, यानी कि हर मेथड्स की, हर तरीके की, हर पॉलिसी की अपनी नुकसानात और फ़ायदे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। इफ़ यू हैव देखो, if we have only seniority base it has some demerit like young employee may feel demotivated and it lead to have turnover। अगर हम सीनियरिटी बेस पे मतलब फैसला करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पॉलिसी को कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे मतलब उसकी भी कुछ नुकसानात है कि ये जो यंग एम्प्लॉइज़ है ये इसमें डिमोटिवेशन क्रिएट होगा और इसको मतलब टर्नओवर में इंक्रीजमेंट भी आ जाता है। If you have only merit base, no, here are also some demerit like biases, favoritism, discrimination, etc. may occur. It is create frustration and senior employees.
तो इससे मतलब ये नुकसानात होते हैं। अब हम इसी तरह कुछ ऐसा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे मतलब कंपनी को और इसके साथ साथ सारे एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा हो। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होगा? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। Have communication with all the employees and give motivation to the employee to perform well. Detailed record of service performance etc. should be maintained for all employees to avoid charge of favoritism. अब आपके लिए ज़रूरी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ऑल एम्प्लॉइज़ के साथ सारी रिकॉर्ड को, हर एक एम्प्लॉई के सारे एग्जाम रिकॉर्ड को, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को शुड बी मेंशन, इसके साथ कम्युनिकेट करे, इसको मोटिवेट करे कि ये परफॉर्म वेल करे ताकि इसको इक्वलिटी मिल जाए। Listen to other employee and negotiate with them or convince them about correct decision taken by management. Establish a fair promotion policy. टॉप मैनेजमेंट को मतलब ये चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे जिससे दोनों मतलब कंपनी को भी और एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा हो। ऑन द बेस ऑफ बोथ सीनियरिटी मेरिट, और ये ऐसा ही हो सकता है कि जब हमने तो सीनियरिटी, अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो इसके मतलब जितने भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली। अगर हम सिर्फ मेरिट बेस की प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो इसकी भी डिसएडवांटेज एडवांटेज है जो हमने भी पढ़े। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो इन दोनों को मिलाकर सीनियरिटी और मेरिट बेस्ड प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हैविंग प्रमोशन। टॉप लेवल जितने भी मैनेजमेंट है उसको चाहे कि वो हर एक के साथ मतलब कम्युनिकेट करें और उसको कहे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलेगा प्रमोशन के। और अब ये तो हमारे साथ कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब सबसे पहले सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अब हमारा आखिरी स्टेज आया हुआ है, इसके आगे भी हो सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में मुझे जितने भी याद थे वो मैंने यहाँ पे मतलब इस टिप्स को सारे को आप लोगों के सामने रखकर इसको डिस्कस किया हुआ है। बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? एस्टेब्लिश अ फेयर प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि वो प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे ऑन द बेस ऑफ बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट, जिसमें सीनियरिटी और मेरिट दोनों की बात हो। सो वी कैन रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ ओनली सीनियरिटी बेस एंड ओनली मेरिट बेस। तो इससे हम सीनियरिटी और ओनली मेरिट बेस के जितने भी डिसएडवांटेज है उसको मतलब हम रिमूव कर सकते हैं, इससे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड हेंस एवरीवन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आल्सो दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क एफिशिएंटली। एंड मैनेजमेंट शुड कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय एंड एक्सप्लेन देम अबाउट द प्रमोशन पॉलिसी। और इससे मतलब हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और इसमें एक मोटिवेशन क्रिएट होगा और ये एफिशिएंटली वर्क कर लेगा। And management should communicate with the employee and explain them about the promotion policy। और मैनेजमेंट को, जितने भी टॉप मैनेजमेंट है उसको इसके लिए ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेट करे, वो ऑल द एम्प्लॉइज़ के साथ और उसको एक्सप्लेन करे अबाउट द प्रमोशन पॉलिसी। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक। थैंक यू।